शुरुआत करते हैं। सो अजय, कैन यू मैनेज टू शेयर द पीपीटी? यस। सो अभी रजा का माहौल कंप्लीट हो चुका है। आज से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को लर्निंग करने की एडवांस में शुभकामना। अभी तक हम मॉडल देख रहे थे। मॉडल वर्ब क्या क्या हमने देखा? कैन, कुड, मे, सॉरी, कैन, कुड, वुड, शुड, इतना हमने मॉडल वर्ब देखा। आज हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट। Yes, you should always follow these welcome notes. Next. And our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. And to fulfill that intention, you have to keep in mind that why should I want to learn English? Why do I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको याद रखना है। और आज का टॉपिक है, today's topic is नेक्स्ट, मॉडल वर्ब मे एंड माइट। आज हम मॉडल आगे मे और माइट देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि सपोज करो अभी ऐसी मॉनसून चल रहा है, तो सिचुएशन है बारिश की, कि बहुत बादल मंडरा रहा है और एकदम घने काले घने बादल हो गए, पूरे बादल बादल मंडरा रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी रिद्धि? यस या सर। रिद्धि, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? पॉसिबिलिटी, संभावना, क्या संभावना होगी? વાદળ ફૂલ ચડેલા છે, કાળા કાળા વાદળ થઈ ગયા છે ઉપર, તો શું સંભાવના હશે? વરસાદ થવાની સંભાવના. યસ, વરસાદ થવાની સંભાવના હશે. બટ એ સંભાવના છે એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કદાચ આજ વરસાદ પડશે એવું બોલીએ આપણે? यस આપણે ગુજરાતીમાં કદાચ और हिंदी में शायद ऐसा बोलते कौन कौन यूज करते हैं? अपने हैंड रेज करो કે કદાચ આજે હું અહીંયા જઈશ, કદાચ અહીંયા આજે અમે આ બનાવશું, या तो हम हिंदी में ऐसे शायद मैं ये करूंगा, शायद बारिश होगी। तो अब बहुत जगह पे हम ऐसे बोलते हैं ना। तो आज से आप जो जहां जहां, यस आई गॉट यू, ओके, मैंने देख लिया आप सभी का हैंड रेज। तो आज से आप सभी को शायद जहां पे भी बोलते हो, वो शायद की जगह पे मैं मॉडल वर्ब यूज करना है। मैं यूज होगा इंग्लिश में शायद की जगह पे। तो कैसे यूज होगा, चलो हम आगे देखते हैं। सेंटेंस पैटर्न में और माइट की सेम रहेगी। जैसी सेंटेंस पैटर्न हमने कुड में देखी थी, कैन में देखी थी, शुड में देखी, वुड में देखी, वही रहेगी। पर हम आगे बढ़े इससे पहले, यस यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, कि पहले पॉसिबिलिटी है, संभावना, पर कितनी संभावना है मैं यूज करोगे तब? जब मोर देन 90% संभावना है ना, तब मस्ट यूज होगा। तो वो मस्ट मॉडल सीखेंगे तब आपको और इससे बारे में ज्यादा क्लियर करेंगे। जब 10 to 90% की संभावना है तब मे यूज होगा, और जब लेस देन 10% की संभावना है तब माइट यूज होगा। मे का जहां जहां यूज होगा वो सभी जगह पे आप माइट का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज माइट इन प्लेस ऑफ मे व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इज लेस देन 10%। જ્યારે સંભાવના તમને એવું લાગે 10% થી ઓછી છે, મતલબ બહુ જ ઓછી સંભાવના છે કે વરસાદ પડવાની સંભાવના, આપણે કીધું ને કદાચ આજ વરસાદ પડશે, એક એ રીતનું બોલી શકું। અને જ્યારે સંભાવના બહુ જ ઓછી હોય ત્યારે શું કહીએ? કદાચ જ વરસાદ પડશે। તો કદાચ જ, શાયદ ही बारिश होगी, ત્યારે શું યુઝ થશે? મે, સોરી, માઇટ। બહુ જ ઓછી સંભાવના ત્યારે માઇટ, જ્યારે 10 થી 90% ની સંભાવના ત્યારે મે, અને મોર ધેન 90% ત્યારે મસ્ટ। એ આપણે મસ્ટ ના લેક્ચરમાં જોઈશું। નેક્સ્ટ, મે નો યુઝ ક્યાં થશે? જ્યાં જ્યાં તમે કેન આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ, જ્યાં જ્યાં કેન નો યુઝ થાય ને ત્યાં બધી જ જગ્યાએ મે નો યુઝ કરી શકો તમે। ટુ શો પોસિબિલિટી, કેનમાં પણ અમે જોયું હતું, પોસિબિલિટી દેખાડવા માટે પરમિશન માંગવા, પરમિશન આપવા, તો ત્યાં બધી જ જગ્યાએ મે નો યુઝ થશે। પણ કેન છે ને એ ઇનફોર્મલ વેમાં યુઝ થાય, જ્યારે મે છે ને ફોર્મલ વેમાં યુઝ થાય। એટલો ડિફરન્સ છે। ઇનફોર્મલ એટલે અનૌપચારિક અને ફોર્મલ એટલે ઔપચારિક। અનૌપચારિક રીતે તમે ક્યાં વાત કરી શકો? તો કે તમારા ફ્રેન્ડ હોય, તમારાથી નાના વ્યક્તિ હોય, એવા બધા સાથે તમે કેન યુઝ કરી શકો। જ્યારે તમારી સાથે, તમારી સામે કોઈ અનનોન વ્યક્તિ છે, તમારી ઉંમરનું જ છે પણ અનનોન છે, તો આપણે એને રિસ્પેક્ટ આપીને વાત કરવી જોઈએ, તો ત્યારે મેનો યુઝ થાય। તમારાથી મોટા કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય,
આપણા સંસ્કૃતિમાં આપણે એ શીખ્યા છીએ કે આપણાથી મોટા વ્યક્તિને આપણે આદરથી બોલાવવા જોઈએ. તો તમારાથી મોટા કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય ત્યારે તમે મે નો યુઝ કરી શકો. મતલબ એને પરમિશન માંગવા અથવા પરમિશન આપવા માટે મે નો યુઝ થશે. એટલે મે ક્યારે યુઝ થશે? ફોર્મલ વેમાં, જ્યારે કેન છે ઇનફોર્મલ વેમાં. એટલે જ્યાં જ્યાં કેન નો યુઝ થાય ત્યાં બધો જ એક એક્સ્ટ્રા યુઝ છે મે નો, ટુ એક્સપ્રેસ વિશિશ એક્સપ્રેસ કરવા માટે. જેમ કે મે ગોડ બ્લેસ યુ, ભગવાન તારું ભલું કરે. તો એ શું થયું? એક્સપ્રેસ વિશિશ આપવા માટે એક મે નો એક્સ્ટ્રા યુઝ છે. અમે આ ચારેય યુઝ મે ના છે એક્ઝામ્પલ થી જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. કે શી મે એગ્રી વિથ યોર પ્લાન, એ કદાચ તમારા પ્લાન થી એગ્રી થશે. બીજું કે જ્યાં વિલ છે ને, અહીંયા દેખો, તે તમારા પ્લાન થી એગ્રી થશે. તો તમને લાગે વિલ નો યુઝ કરી શકીએ? સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ કે શી વિલ એગ્રી વિથ યોર પ્લાન, તે તમારા પ્લાન થી એગ્રી થશે. યસ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ જ છે, પણ તમારે એમાં સંભાવના એડ કરવી છે. મે નો યુઝ સંભાવના માટે થાય કે કદાચ તમારા પ્લાન થી એગ્રી થશે. તો વિલ ની જગ્યા પર મે યુઝ થઈ જશે. હી મે એગ્રી વિથ યોર પ્લાન, એ કદાચ તમારા પ્લાન થી એગ્રી થશે, સહમતિ આપશે. ઇટ મે રેન ટુડે, આજે કદાચ વરસાદ પડશે. જો ઇટ વિલ રેન ટુડે કહું તો આજે વરસાદ પડશે. आज बारिश होगी तो इट विल रेन टुडे. बट मैं जब बोलूं इट मे रेन टुडे, तो आज कदाच, आज शायद बारिश होगी. તો જ્યારે આપણે કદાચ એવું બોલીએ ને, આજ કદાચ વરસાદ પડશે, હવે હું આને જગ્યાએ હજી મારે એમ કેવું કે નહીં આજ તો કદાચ જ વરસાદ પડશે, બહુ ઓછી સંભાવના છે, તમને લાગતું જ નથી કે વરસાદ પડશે, તો તમે મેની જગ્યાએ શું યુઝ કરશો? માઇટ. ઇટ માઇટ રેન ટુડે. નેક્સ્ટ છે માય બ્રધર મે જોઈન ધ નેક્સ્ટ બેચ ઓફ ધ ઇંગ્લિશ ક્લબ. માય બ્રધર મે જોઈન ધ નેક્સ્ટ બેચ ઓફ ધ ઇંગ્લિશ ક્લબ. મારો ભાઈ કદાચ ઇંગ્લિશ ક્લબની આવતી બેચ જોઈન કરશે. પણ કદાચ 100% નથી. અગર તમને એવું લાગે છે કે 90% ઉપર તો મસ્ટ આવશે, એ મસ્ટ ના આપણે મોડલ વર્બ જોઈશું ત્યારે શીખશું. પણ સંભાવના 10 to 90% ની છે એવું તમે માની શકો કે એ જોઈન કરશે એવું તમને લાગે છે. તમને એવું લાગે બહુ જ ઓછું, હું એમ કહું તમારો ભાઈ ઇંગ્લિશ ક્લબ જોઈન કરશે, તો તમને એવું લાગે છે કે નહીં એ કદાચ જ કરશે, તો માય બ્રધર માઇટ જોઈન ધ નેક્સ્ટ બેચ ઓફ ઇંગ્લિશ ક્લબ. મારો ભાઈ કદાચ જ આવનારી બેસ્ટ ઇંગ્લિશ ક્લબની જોઈન કરશે. નેક્સ્ટ, રાહુલ વર્ક્સ હાર્ડ, હી મે પાસ ધ એક્ઝામ. ઇફ રાહુલ વર્ક્સ હાર્ડ, જો રાહુલ સખત મહેનત કરશે તો હી મે પાસ ધ એક્ઝામ, એ એક્ઝામ પાસ કરી શકશે, એ કદાચ એક્ઝામ પાસ કરી શકશે. तो आ कंडीशनल सेंटेंस થઈ ગયું इफ वाળું. हम इसी वीक में कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ेंगे. टाइप 1 का कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, 4 टाइप के होते हैं. टाइप 0 में दोनों क्लोज होते हैं, इफ वाला क्लोज और ये जो कॉमा करते हैं इसके सेकंड वाला क्लोज, वो दोनों सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. टाइप 1 में पहला क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा क्लोज होता है, इसमें मॉडल वर्ब में कुड यूज होता है. में होता है या तो कुड यूज कर सकते हो, वुड यूज कर सकते हो. दूसरे क्लोज में मॉडल वर्ब यूज होता है. और ये संभावना ऐसी है, ये पहला क्लोज होता है वो इसकी दूसरे क्लोज में इसका पॉसिबल रिजल्ट होता है. तो ये पॉसिबल रिजल्ट है, अगर सख्त मेहनत करेगा तो वो शायद एग्जाम पास करेगा. पॉसिबल रिजल्ट हो गया. तो कंडीशनल सेंटेंस है, हम और डिटेल में देखेंगे. अभी आपको यही समझना है कि ही में पास द एग्जाम, वो शायद एग्जाम पास करेगा या कर सकता है. मे आई कम इन सर, देखो ये क्या हो गया, ये पहले 3 था ना, वो क्या था? पहले शी में एग्री विथ योर प्लान, पॉसिबिलिटी, टू शो द पॉसिबिलिटी. अब है टू आस्क द परमिशन मांगने के लिए. मे आई कम इन सर. આપણે અત્યાર સુધી બધાને ખબર હશે કે આપણે જ્યારે ક્લાસમાં એન્ટર થઈએ ત્યારે આપણે પૂછીએ કે मे आई कम इन सर, अथवा दवाखानाમાં मे आई कम इन डॉक्टर. तो आज आपको पता चला मे क्यों यूज करते हैं वहां पे? क्योंकि हम, अगर हमारे सर है, डॉक्टर है, तो वो क्या है, हमारा से बड़ा है, इसलिए हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है. तो रिस्पेक्ट से जब बात करनी है तब हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मैं, इसीलिए हम मैं यूज करते हैं.
देखो जहां पे भी मे यूज होता है वो सभी जगह पे आप कैन यूज कर सकते हो। तो आप अगर आपकी फ्रेंड्स की कोई पार्ट, सब लोग आपके फ्रेंड्स बैठे हैं और वो रूम में, एक रूम में है और आपको उस रूम में एंटर होना है, तो वहां आप मे आई कम इन ऐसे नहीं बोलोगे। फ्रेंड के साथ तो आप कैन आई कम इन ऐसे भी बोल सकते हो, शू अंदर આવી શકું। बट आपसे बड़ा है इसलिए मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये आस्क परमिशन हो गया। मैं आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपको किसी का रिस्पेक्ट से बोलना है, पूछना है कि क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई हेल्प यू। देखो ये भी बहुत सारी बैंक में आप जाओ या तो कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओ, बहुत सारी जगह पे ये डेस्क रहता है। हॉस्पिटल में जाओ बड़ी, वहां भी लिखा है मे आई हेल्प यू, शू તમારી મદદ કરી શકું। तो मैं उसलिए यूज किया, आप रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो अपने कस्टमर से हो कि शू તમારી मदद કરી શકું। यहाँ कैन भी यूज हो सकता है, कैन आई हेल्प यू, बट मैं यूज किया इसका मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट से आपको पूछ रहा है कि शू તમારી मदद કરી શકું। तो ये हो गया टू आस्क परमिशन। नेक्स्ट प्लीज। ये टू ग्रांट परमिशन, मतलब પરમિશન માંગવા યુઝ થાય, પરમિશન આપવા પણ યુઝ થાય। પરમિશન આપવા માટે કે હિત રાજાણી કેમેરાની સામે નથી, હિત રાજાણી રોલ નંબર C39 કે હિતના મમ્મી છે એ લેક્ચર એટેન્ડ કરે છે। હા યસ સર તો રોલ નંબર હિત નથી ક્લાસમાં। હિતને તબિયત ખરાબ હતી ને 15 દિવસ એડમિટ કરાવતી પછી નથી આવતો ક્લાસ। ઓકે, કેમ છે હવે, સારું થઈ ગયું? હા એને થોડાક દિવસ તકલીફ હતી પછી નથી આવતો તેતુની હું જ એટેન્ડ કરું છું। સરસ, ચલો। તો યુ મે ગો નાઉ, તમે હવે જઈ શકો છો। પરમિશન આપી, શું હું જઈ શકું? તો તમારે કેવું, યસ યુ મે ગો નાઉ, હા તમે જઈ શકો છો। તો યુ મે ગો નાઉ। યુ મે લીવ ધ ક્લાસ, તમે ક્લાસમાંથી છોડી શકો છો, મતલબ ક્લાસમાંથી જઈ શકો છો। યુ મે યુઝ માય પેન, તમે મારી પેન યુઝ કરી શકો છો। તો જ્યારે પોલાઇટ વે થી કેવું છે ત્યારે યુ મે અથવા તમે યુ કેન પણ યુઝ કરી શકો, યુ કેન યુઝ માય પેન। તમે તમારા ફ્રેન્ડને કોઈને કેવું છે ત્યારે પરમિશન એ રીતના આપશો કે તમારો ફ્રેન્ડ તમને પૂછે કેન આઈ હેવ યોર પેન, શું મને તારી પેન મળશે? તો તમે કહેશો યસ યુ કેન યુઝ માય પેન, તું મારી પેન યુઝ કરી શકે છે। પરંતુ જ્યારે બેંકમાં જાઓ તમે અને કોઈને તમારી પેન કોઈ માંગે કે ભાઈ મારે તમારી પેન યુઝ કરવી છે અથવા જોઈએ છે, તો તમારાથી કોઈ મોટું વ્યક્તિ હોય તો આપણે થોડું રિસ્પેક્ટમાં વાત કરી હોય તો ત્યાં શું કહેશો, યુ મે યુઝ માય પેન, તમે મારી પેન યુઝ કરી શકો છો। તો એ રિસ્પેક્ટ થઈ ગઈ। તો ગ્રાન્ટ પરમિશન મતલબ પરમિશન આપી, અને પરમિશન માંગી, તમે પરમિશન આપી। એન્ડ ફોર્થ વન અમને દેખાય ટુ એક્સપ્રેસ ધ વિશિસ, કોઈને વિશિસ આપવા માટે છે કે મે ગોડ બ્લેસ યુ, ભગવાન તમારું ભલું કરે। મે યુ બોથ લીવ લોંગ एंड सॉरी मे यू बोथ लिव लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, सॉरी लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक है। मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ नहीं यहाँ लिव होगा, मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग लाइफ, आप दोनों को लंबी उम्र दे भगवान, आप दोनों को लंबी उम्र दे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो आपको कहीं विशेष एक्सप्रेस करना है। तो आज से कहीं किसी का भी मतलब जन्मदिन है और आपको शुभकामना देनी है, तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान તમારું ભલું કરે, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये एक्सप्रेस विशेष करने के लिए हो गया मे का यूज। ओके, अब हम किसी को पूछते हैं मे का एग्जाम्पल क्या होगा। मीनाक्षी पटेल, कहाँ यूज करोगे मे आप? दूसरा सब चैट में लिखिए। मीनाक्षी यस। May I मे come in? आई, वो तो इसमें आ गया, आप कोई अपनी लाइफ में से एग्जांपल दीजिए। मीनाक्षी, बोलिए, कुछ बोलिए May आप I अपनी लाइफ में। may I सॉरी, help, मे sir? मे आई, Help, sir. यस आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। मे आई वहां तक मुझे समझ में आया। Help, sir. मे आई हेल्प यू, ओके हाँ, ओके, मे आई हेल्प यू, શું હું તમારી મદદ કરું?
यस भावेश वाटलिया, यस सर। आप अपनी लाइफ में कहाँ यूज करोगे मे और माइट? मे आई पे बिल। मे आई पे योर बिल अथवा मे आई पे, हाँ देखो, अगर आप खाना खाने गए हो और आपको पूछना है, आप रिस्पेक्ट दे के पूछना है क्या मैं बिल पे कर दूं, तो मे आई पे द बिल, શું હું બિલ પે કરી દઉં? ઓકે. શિલ્પા માંગુકિયા, या शिल्पा, यस सर। कहाँ पर मैं यूज करोगे आप, मैं या माइट? हिंदीમાં शिल सॉरी, हिंदीમાં બોલું કે इंग्लिश में? सतीश लिख रहा है मे आई सिट हियर, यस। देखो आपको बैठना है कहीं ऐसी जगह पे, आपको परमिशन लेना है तो मे आई सिट हियर, शू अहीं पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क या होगा, परमिशन लेते हो तो वो क्वेश्चन वाला हो गया। मे टेक योर हैंडकरचीफ, यस। मे यू मे आई डिक्लेयर रिजल्ट टुडे, ओके। May I come with you? Okay. May I join Garba class? Okay. May I drive a car? Okay. If she does her work properly, she may get good salary. Very good. सैलरी का स्पेलिंग रॉन्ग है, उसमें देख लेना। May I give you answer? Very good. चलो परफेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं भी, अब देखो हमने शुड भी देखा था, कुड भी देखा था, वुड भी देखा था, ऐसे में भी जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रही होगी, मेन वर्ब नहीं होगा। अब आप लिखना बंद कर दीजिए, अब सुन लीजिए, चैट बंद कर दीजिए, सुन लीजिए। अब जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगी तो हम क्या मे भी यूज करेंगे। एक्शन नहीं होगी तो बी क्या दिखाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग होगा, एक्शन नहीं होगी। देखते हम, जैसे बोला कि वो कैमरा के सामने हो सकता है, तो ही कैन बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, पर यहाँ તે કદાચ કેમેરાની સામે હશે તો ही मे बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कैन की जगह पे हमने बोला मे यूज करते हैं, पर मे यूज करते हैं तब शायद ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्लीज, वो ही मे बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, એ કદાચ જ કેમેરાની સામે હશે। અહીં કોઈ એક્શન થાય છે? કોઈ એક્શન નથી થતી, इसलिए ओनली मे बी यूज होगा। कोई एक्शन होती तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मे यूज होता है। यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होने का, तो कैमरा के सामने है। नेक्स्ट प्लीज। बाळको कदाच स्कूल में हशे, यस। लेट मी आस्क दिनेश भाई G28, आप कैसे बोलोगे अगर आपको बोलना है बच्चे शायद स्कूल में होंगे? दिनेश भाई। Children may be in यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, children may चिल्ड्रन be in the मे बी इन द स्कूल, वेरी गुड। बाळको बच्चे शायद स्कूल में होंगे, मे बी इन द स्कूल। આપણે मे बी ऐसा बहुत सारे बार यूज करते हैं, मे बी मतलब कदाच ज। अब यहाँ चिल्ड्रन कैन बी इन द स्कूल, तो बच्चे स्कूल में हो सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। बच्चे द चिल्ड्रन शुड बी इन द स्कूल, तो बच्चे स्कूल में होने चाहिए। બાળકો સ્કૂલમાં હોવા જોઈએ। બાળકો તમને પૂછે ક્યાં છે, એ તો કદાચ એ સ્કૂલમાં હોવા જોઈએ, તો the children should be in the school। બાળકો સ્કૂલમાં હોવા જોઈએ, should। બાળકો સ્કૂલમાં હોઈ શકે છે, can। the children can be in the school। અને બાળકો કદાચ સ્કૂલમાં હશે, the children may be in the school। બાળકો સ્કૂલમાં હશે, the children will be in the school। ડિફરન્સ સમજ આવે છે? જ્યારે કઈ સ્કૂલમાં હોઈ શકે છે, કેન, હોવા જોઈએ, શુડ, કદાચ હશે તો મે બી। યસ, મારા પપ્પા કદાચ ઓફિસે હશે। ભવ્ય બલ્લર, ભવ્ય, ભવ્ય છે, કોણ છે? યા army. આર્મી, યસ આર્મી। He can't speak in English. ઓકે, ઓકે। વિકાસભાઈ,
नाथानी, यह विकास भाई आपको कुछ नहीं करना है। यस विकास भाई, आपको कहना है मारा पापा कदाच ऑफिस से हशे, कैसे बोलोगे आप? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, माय फादर मे बी इन द ऑफिस। देखो यहाँ आप प्रीपोजिशन इन यूज किया, तो अगर आपको मतलब અત્યારે ઓફિસમાં હશે એવું કેવું હોય ને તો ઇન, ચાર દિવાલની અંદર हमने प्रीपोजिशन इन देखा था। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। तो इन, बट आपको एज अ लोकेशन के तौर पे कहना है कि अगर आपको पूछ रहा है आपके पापा कहाँ हैं, तो आप लोकेशन बता रहे हो को ऑफिस के लोकेशन पर है, तो प्रीपोजिशन क्या होगा? एट यूज होगा। याद आ रहा है आपको? लोकेशन के तौर पे आप यूज करोगे तो एट होगा। अगर ऑफिस में है, अंदर है, अभी आपको पूछ रहे हैं कहाँ पर, ऑफिस में कोई पूछ रहे ऑफिस में बहुत सारे कमरे हैं, तो ये कमरे में है तो इन होगा। तो यहाँ माय फादर मे बी एट ऑफिस, तो ये यूज किया, इसका मतलब इन भी रॉन्ग नहीं है, पर ये लोकेशन पे के तौर पे बताया इसलिए। नेक्स्ट प्लीज। राहुल कदाच घर पर हशे, राहुल कदाच घर पर है, राहुल को ही पूछते हैं हम। यस राहुल, राहुल you are on mute, sorry you are on unmute, you can speak. Rahul may be at home. परफेक्ट, राहुल मे बी एट होम, राहुल घर पर होगा। मैं लोकेशन पे, लोकेशन के तौर पे बोलो तो एट, अदरवाइज इन, बहुत करेक्ट है। नेक्स्ट। तेओ कदाच मोड़ा पड़शे, मोड़ा पड़शे मतलब मोड़ा आवशे। देखो यहाँ ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम गुजराती में तो ऐसे बोलते हैं, पर आपको सेंस पकड़ना है। मोड़ा पड़शे मतलब क्या? आप ढूंढोगे मोड़ा पड़शे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आपको सेंस पकड़ना है कि सेंस क्या है। मोड़ा पड़शे मतलब मोड़ा, मोड़ा पड़शे एनो मतलब થાય મોડા આવશે, तो તેઓ કદાચ મોડા આવશે, तो ये आपको ऐसा बोलना है, तो कैसे बोलोगे? हेतल सभाया, મોડા આવશે। They may be late. આવશે, લેટ આવશે, Late come. કમ લેટ, Come they late. may, next, they may be come late, next। હું કદાચ देखो यहाँ यहाँ I may यहाँ ये रुको रुको रुको, यहाँ देखो कोई मोड़ा पड़से तो यहाँ कम नहीं होगा, ते में भी लेट ही होगा। आपको किसी को क्यों होगा वो पता है? किसी को यहाँ कम नहीं हो सकता है? किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा क्यों यहाँ दे में भी लेट ही होगा? यस आरशी। બી એટલે હોવું બનવું આવવું એટલે બી यस એટલે परफेक्ट ઓફ થઈ ગયો परफेक्ट परफेक्ट। दे में कम लेट होगा, में होगा तब वर्ब होगा। यहाँ बी है तो वर्ब ऑलरेडी है, बी ही वर्ब है, तब कम नहीं होगा। दे में बी, दे में कम लेट, तेओ कदाच मोड़ा आवशे, पर यहाँ आप बी यूज करते हो तो डायरेक्ट लेट, नाउन ही आ जाएगा। दे में बी लेट, तेओ मोड़ा आवशे, तो ये कम नहीं होगा इधर। ओके, हूँ कदाच खोटो होईश। यस श्रीजा। सर यहाँ पे તેઓ છે તો ही થોડું આવે, ધ્યેય નો આવે। हाँ ध्येय आवे, वेरी गुड। आपने देखो वो भी पकड़ा, यहाँ ध्येय होगा, यहाँ तेओ છે तो ही नहीं होगा ना, ध्येय होगा। परफेक्ट। हूँ कदाच खोटो होईश, तो आप वो कैसे बोलोगे? मित्तल। आई मे यस मित्तल। I may be wrong. I may be wrong, perfect। next। I may be wrong, कदाच खोटो होईश। ओके नेक्स्ट। बहुत इजी टॉपिक है, देखो जहां पे भी मैं था वो सभी जगह पे आप माइट यूज कर सकते हो। आई माइट गो टू कंसल्ट अ डॉक्टर, हूँ कदाच ज डॉक्टर ने कंसल्ट करवा जईश। द शॉपकीपर माइट क्लोज द शॉप टुडे, दुकानदार कदाच ज दुकान बंद राखशे। वरुण मे गो टू द लंडन, वरुण कदाच लंडन जशे। वरुण सेड, अब देखो एक यूज मे का है, जैसे हमने व्हील में देखा था कि अगर आपको बोलना है
કે આઈ વિલ ગો ટુ ધ લંડન, હું લંડન જઈશ. હવે मतलब सपोज करो मुझे रजनीकांत ने बताया कि मैं लंदन जाऊंगा, आई विल गो टू लंदन. अब मैं किसी और को बता रहा हूँ, मैं शक्ति को बता रहा हूँ कि शक्ति तुझे पता है ये रजनीकांत मुझे बता रहा था कि वो लंदन जाएगा. रजनीकांत सेड मी, रजनीकांत ने मुझे कहा था, से का फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेड हो जाएगा. रजनीकांत ने मुझे कहा था कि मैं का तब हम कहाँ मैं का क्या यूज करेंगे हम फिर, मैं का सॉरी विल का हो जाएगा वुड. रजनीकांत वुड गो टू द लंदन, रजनीकांत लंदन जाएगा. तो विल का अगर हम पास्ट में यूज करते हैं तो वुड हो जाएगा. ऐसे ही मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाएगा. जैसे वरुण सेड, वरुण ने कहा था क्या, ही माइट गो टू द लंदन, वो शायद लंदन जाएगा. समझ रहे हो, जैसे विल का हम वुड कर रहे थे, यहाँ ऐसे सिर्फ ऐसा बोलना है कि ही मे गो टू द लंदन, ये कदाच लंदन जैसे. परंतु वरुण मे गो टू द लंडन, वरुण कदाच લંડન જશે. પરંતુ હવે એ વાક્ય તમારે કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિને કહેવું છે કે વરુણે મને કહ્યું હતું કે તે લંડન જશે, તો એ પાસ્ટ થઈ ગયું કે કહ્યું હતું. તો વરુણ સેડ મી, વરુણે મને કહ્યું હતું that he might go to the લંડન, એ લંડન જશે. she might agree with your plan, એ કદાચ જ તમારા પ્લાન સાથે એગ્રી થશે. it might rain today, આજ કદાચ જ વરસાદ પડશે. my brother might join the next batch of the English club, મારો ભાઈ કદાચ જ આવનારી બેચ જોઈન કરશે. we might go on vacation, અમે કદાચ જ વેકેશન પર જઈશું. next please. બી વાલા સેમ આગે था, તે કદાચ કેમેરાની સામે છે તો he may be in front of camera, but એ કદાચ જ वो शायद ही कैमरे के सामने होगा, तो he might be in front of the camera. the children might be in the school, કદાચ જ સ્કૂલમાં હશે. મારા પપ્પા કદાચ જ ઓફિસે હશે, might be at office. હું કદાચ જ ઘર પર, રાહુલ કદાચ જ ઘર પર હશે, રાહુલ might be in the home. તેઓ કદાચ જ મોડા પડશે, he might be late, કમ નહીં હોगा, he might be late. और હું કદાચ જ ખોટો હશે, I might be wrong. बहुत इजी है. नेक्स्ट. यस, ये मॉडल परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको सीखना है. परफेक्ट मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ. परफेक्ट मतलब आपको पता है एक्शन कंप्लीट होगी, तो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे हमने कैन कोड में देखा था, कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वुड में देखा था वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सेम ऐसे माइट प्लस मे या माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पर ये कब यूज होगा? देखो सिर्फ यहाँ फर्स्ट लिखा है यू माइट हैव लॉस्ट योर की, तो सिचुएशन कैसी होगी तब आप ये परफेक्ट यूज करोगे. परफेक्ट के लिए एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, तब भी परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. आपको अगर बोलना है कि मैं शायद मेरी की खो दूंगा, मैं शायद, आई मे लूज माई की, तो शायद. पर अगर वो सिचुएशन हो गई है, सपोज अभी आप सपोज करो कि તમારી की ખોવાઈ ગઈ છે, તો તમે શું કહેશો? મારી की કદાચ ખોવાઈ ગઈ છે અથવા કદાચ ખોવાઈ ગઈ હશે. તમારી પાસે અત્યારે કી નથી, તમે સપોઝ કે 4 વ્હીલ છે ગાડી, એની કી તમે એને લોક કરી અને બહાર ગયા, પાછા ગાડી પાસે પહોંચ્યા, કી ખીચામાં નથી. તો હવે તમે કી ખીચામાં નથી, તો તમારી સાથે કોઈ મિત્ર છે, કહેશે તારી કી મતલબ તમારી કી, તારી કી કદાચ ખોવાઈ ગઈ હશે, ખોવાઈ ગઈ હશે અથવા ખોવાઈ ગઈ છે, બોથ આર કરેક્ટ. બે એ રીતનું કહેશે સામેવાળા વ્યક્તિ. तो की खोवाई गई છે मतलब वो परफेक्ट हो गई एक्शन, कि कदाच खोवाई गई છે, खोવાની क्रिया केवी થઈ ગઈ છે, पूर्ण થઈ ગઈ છે, तो ये परफेक्ट हो गया. और फ्यूचर में बात करनी है तो तू शायद अपनी की खो सकता है, मतलब वो अपनी जेब में की नहीं रखता है, वो अपनी उंगली पे रख के घुमा रहा है, बार बार अपने जेब में से बाहर निकाल रहा है. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि शायद तेरी की गुम हो सकती है. तो योर की मे you may lose your key, કદાચ તારી કી ખોવાઈ જશે. પરંતુ ખોવાઈ ગઈ છે એટલે પરફેક્ટ થયું કે you might have lost your key, તમારી કી ખોવાઈ ગઈ છે. પછી હવે બીજું એક્ઝામ્પલ એ, અસ્મિતા might have gone to consult the doctor. અસ્મિતા કદાચ જ ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરવા ગઈ હશે.
કદાચ જ ગઈ હશે મતલબ એ તમે ક્યારે બોલો કદાચ જ ગઈ હશે બે સેન્ટેન્સ બોલી શકાય અસ્મિતા ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરવા જશે અસ્મિતા કદાચ આજે ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરવા મતલબ ડોક્ટરને બતાવવા જશે તો એ કદાચ ડોક્ટરને બતાવવા જશે તો ખાલી મોડલ આવશે અસ્મિતા મે ગો ટુ કન્સલ્ટ ધ ડોક્ટર અસ્મિતા કદાચ ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરવા જશે ડોક્ટરને બતાવવા જશે પરંતુ તમારે એવું કેવું છે કદાચ જ ગઈ હશે તો એ કયું થઈ ગયું મોડેલ પરફેક્ટ થઈ ગયું કે એક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકી છે કદાચ જ ગઈ હશે તો અસ્મિતા માઇટ હેવ ગોન ટુ કન્સલ્ટ ધ ડોક્ટર પછી એક ઓર એક્ઝામ્પલ દેખો હવે તમે કોઈ રસ્તા પરથી જાઓ છો એ રસ્તો ભીનો છે તમે અનુમાન લગાવો છો કદાચ વરસાદ પડ્યો હશે दो तरीके से बोल सकते हैं आप अब अनुमान लगाते हो वो जो रास्ते पर से आप गुजर रहे हो रास्ता थोड़ा गीला है तो आपको लगता है शायद बारिश हो चुकी होगी या तो कदाच वरसाद पड़्यो हशे एक ए थयुं बीजू कि आजे कदाच वरसाद पड़शे तो आजे कदाच वरसाद पड़शे कयुं थयुं सिंपल सेंटेन्स तो एमां सिंपल मॉडल आवशे इट मे रेन टुडे आजे कदाच वरसाद पड़शे परंतु जયારે અનુમાન લગાવો ત્યારે પરફેક્ટ થયું કદાચ વરસાદ પડી ચૂક્યો હશે અથવા કદાચ વરસાદ પડ્યો હશે કદાચ વરસાદ પડ્યો હશે તો એ મોડેલ પરફેક્ટ થઈ ગયું કે ઇટ માઇટ હેવ રેન હિયર અહીંયા કદાચ વરસાદ પડ્યો હશે પણ માઇટ જ્યારે કહો છો ત્યારે સંભાવના કેવી છે ઓછી સંભાવના છે ઇટ મે હેવ રેન હિયર અહીં કદાચ વરસાદ પડ્યો હશે ત્યારે સંભાવના થોડી વધી જાય છે એટલે આ પરફેક્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ ક્લિયર થાય છે જ્યારે ખાલી સિમ્પલ છે કે વરસાદ આજે વરસાદ પડશે અને આજે કદાચ વરસાદ પડી ચૂક્યો અહીંયા કદાચ વરસાદ પડી ચૂક્યો હશે અથવા વરસાદ પડ્યો હશે એટલો ડિફરન્સ છે આઈ માઇટ હેવ ફોરગોટન માય કી એટ કાફે હું કદાચ મારી કી કાફે પર ભૂલી ગયો હશ नेक्स्ट नरेश मे हैव टेकन लंच एंड नरेश माइट हैव टेकन लंच देखो आमा क्या डिफरेंस है अगर आप एक और एग्जांपल से मैं क्रिएट करता हूँ कि आप दोपहर का 12 बजाए और आपकी मदर है वो बोलती है उसके बच्चे को कि नरेश तेरा फ्रेंड है आज उसकी मम्मी घर पे नहीं है उसको खाना खाने के लिए बुला तो आप बोलोगे मम्मी अभी 12 बज गया नरेश ने शायद खाना खा लिया होगा तो नरेश मे हैव टेकन लंच नरेश मे हैव टेकन लंच नरेश ने शायद खाना खा लिया होगा आप मम्मी बोलती है नहीं नहीं अभी तो 12 ही बजा है उसने शायद ही खाना खाया होगा तो वो क्या रिप्लाई करेगी कि नरेश माइट हैव टेकन लंच नरेश कदाच ज जम्यो हशे क्लियर तो ये परफेक्ट मॉडल हो गया ओके नेक्स्ट प्लीज अब किसी को डाउट है यहाँ इसमें परफेक्ट मॉडल में कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरी है यस श्रीजा सर मुझे ये लास्ट से दूसरे क्वेश्चन में डाउट है सेकंड लास्ट नरेश हाँ मे हैव नरेश टेकन may लंच have क्या डाउट है हाँ, को सर। क्या समझ में नहीं आया इसमें सर यहाँ पे तो ये माइट हैव का था ना तो यहाँ पे मे हैव क्यों आया कहाँ माइट हाँ देखो यहाँ माइट नीचे है यहाँ में है अब आपको संभावना कम है बहुत कम संभावना लगती है तब माइट यूज करो आपको इससे ज्यादा संभावना लगती है तब में यूज करो तो ये वो आप जो बोल रहे हैं उसके कंटेक्स्ट पर डिपेंड कर रहे हैं कि उनको कितनी संभावना लग रही है श्रीजा ओके अब 12 बजा है मम्मी बोल रही है आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है श्रीजा क्रिशा क्या नाम है क्रिशा शाह क्रिशा क्रिशा यस ओके आपकी फ्रेंड क्रिशा है अब क्रिशा की मम्मी घर पे नहीं है तो श्रीजा आपकी मम्मी बोलती है 12 बज गया आज क्रिशा की मम्मी घर पे नहीं है उसको खाना खाने के लिए बुला लो तो आप बोलोगे मम्मी अभी तो 12 बज गया क्रिशा ने शायद खाना खा लिया होगा ऐसा बोलोगे आप मम्मी को यस तो वो संभावना हुई कि शायद खाना खा लिया होगा तो क्रिशा मे हैव टेकन लंच मे हैव ईटन उसने शायद खा लिया होगा मे हैव टेकन लंच मे हैव ईटन हर लंच तो वो क्या हो गया कि क्रिशा ने शायद खाना खा लिया होगा अब आपकी मम्मी फिर से बोलती है अरे अभी तो 12 ही बजा है वो तो 1 बजे तक खाना खाती है वो उसने शायद ही खा लिया होगा आप एक बार पूछो तो सही शायद ही खा लिया होगा तो क्रिशा माइट हैव टेकन लंच
शायद ही खा लिया होगा, माइट हैव टेकन लंच। तो वो संभावना किसी हुई गई, बहुत कम संभावना हुई, तब माइट यूज किया। पहले संभावना आपने बात किया, संभावना ज्यादा बताई कि उसने तो शायद खा लिया होगा, पर मम्मी ने कहा बहुत कम संभावना हुई कि नहीं नहीं शायद ही खा लिया होगा, तब उसने माइट यूज किया। क्लियर हो रहा है? ओके। और किसी को कुछ डाउट या क्वेरी क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट होमवर्क देख लेते हैं। आज फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। आज ब्रेकआउट रूम में जाके ये सेंटेंस है वो आपको सबको लिखने हैं। और एक होमवर्क है नेक्स्ट, या वॉच टुडेज वीडियो लेक्चर ऑन आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब सूरत। ये वीडियो लेक्चर है वो इंग्लिश क्लब सूरत में हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहां जाके आपको देखना है। तो अब जो 10 सेंटेंस है वो लिखो और ये पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। ये मैं बार बार मॉडल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वो कैन कंप्लीट कर लिया होगा तो आप मैं आसान से सीख जाओगे, क्योंकि कैन जहाँ यूज होता है वहां ही मैं यूज होता है। सिर्फ फॉर्मल वे में मैं, इनफॉर्मल वे में कैन। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको और ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए बार बार मॉडल में बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको पूरा ये जो वीडियो लेक्चर है वो यूट्यूब में देखना है एक बार। दैट इज टुडेज होमवर्क। यस, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग प्रैक्टिस। हम जितने भी मॉडल सीखे अभी तक उस मॉडल का हमें बोलना, अब हम आपको ब्रेकआउट रूम में भेजते हैं और ब्रेकआउट रूम में आपको बोलना है जो भी आपको मर्जी हो, जो भी मन करे वो कुछ भी आपको बोलना है, पर आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा ये मॉडल वर्ब का यूज करके कोई सेंटेंस बोलना है, जैसे कैन, कुड, शुड, मे और माइट। ये 5 मॉडल हम अभी तक सीखे हैं, तो ये 5 मॉडल का यूज मैक्सिमम करना है। तो ये टाइम बहुत कम होगा, हम शायद 10 मिनट या के लिए ही कर पाएंगे। तो आपको पूरा यूटिलाइज करके जितना हो सके इतना ज्यादा बोलना है, और जिसको लगता है मैं नहीं बोल सकता उसको ट्राई करना है। आप नहीं बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे, ट्राई करो जैसा भी बोलो ऐसा। ठीक है अजय, आर यू रेडी टू मूव देम ऑल इनटू Yes, ब्रेकआउट रूम? yes, I'm ready. But one more information is that if after breakout room close the session, so no need to join again class. क्लास ब्रेकआउट रूम के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है, और ये 11 मिनट के लिए है। थैंक यू सो मच। आई एम ओपन द ब्रेकआउट ऑल रूम। और जहाँ पे भी कोचेस नहीं है वहाँ पे आर करके रोल नंबर है, उनको थोड़ा सपोर्ट करना है। 2-5 मिनट कोचेस अलॉट किए जाएंगे। थैंक यू।